Hello everyone, I welcome you to Success CD's Education. Success CD's Education में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रुचिका है। मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लाई हूँ जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में है। ये जून 2017 के लिए हैं। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर करेंगे। तो चलिए लेट अस स्टडी। Let us see question number 26. How much financial support has the Asian Development Bank given for infrastructural development in India? इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी USD यानी कि US डॉलर 10 बिलियन। इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक को ADB भी कहते हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं ताहिकिलो नाकाओ। He was on a 3-day visit to India. ADB is a multilateral lending agency based in Manila, Philippines. तो ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में, जो कि फिलीपींस का कैपिटल है। It provides finance to both sovereign countries as well as to private parties. ADB देशों को भी फाइनेंस देता है और साथ ही साथ कोई भी प्राइवेट पार्टी है उसको भी फाइनेंस देता है। As per the estimates of ADB, India is expected to grow by 7.4% in the current financial year and 7.6% in 2018-19. तो ADB के हिसाब से भारत की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो इस साल में इतने परसेंट और अगले साल में इतने परसेंट होगी। Now let us move on to question number 27. Which building in India has received the world's second highest green rating? इसका आंसर है ऑप्शन सी सिएरा ओडीसी। इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं। दिस इज द बिल्डिंग ऑफ सिएरा ओडीसी। द बिल्डिंग हैज स्कोर्ड 103 पॉइंट्स आउट ऑफ 110। सिएरा ओडीसी को 110 में से 103 पॉइंट मिले हैं अंडर द लीड सर्टिफिकेशन। इस बिल्डिंग में 100% वाटर की रिसाइकलिंग होती है। इट इज कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग यानी कि यहां से कोई भी कार्बन इमिशंस नहीं होती। The building was the first to implement a technology called amorphous silicon thin building (VOTIC) for the first time in South India. साउथ इंडिया रीजन में ये एक टेक्नोलॉजी है कंस्ट्रक्शन की जिसका नाम है amorphous silicon thin building (VOTIC). ये टेक्नोलॉजी सिएरा ओडीसी में सबसे पहले यूज हुई थी साउथ इंडिया में। Now let us see question number 28. India has recently purchased which aircraft from the USA? The answer is option A, C-17. Let us see some more information related to this. This is C-17. This has costed USD 366.2 million. यानी कि इस एरोप्लेन की कॉस्ट है 366.2 million US dollar. It is a transport aircraft manufactured by Boeing. It also includes missile warning system, countermeasures dispensing system, identification friend or foe transponder and precision navigation equipment. तो ये जो C-17 एयरक्राफ्ट है इसमें ये सारे सिस्टम्स भी उपलब्ध हैं। Now move on to question number 29. Which country has been named the book capital of the world for the year 2019 by UNESCO? The answer is option D, Sharjah. This is the placement of Sharjah on the world map. कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं। Sharjah was chosen for its efforts to make books accessible to its entire population. शारजा जगह पर एफर्ट किए जा रहे हैं कि सब लोगों को बुक्स प्रोवाइड की जाएं और इसीलिए इसे वर्ल्ड बुक कैपिटल अनाउंस किया गया है फॉर द ईयर 2019। द अर्लियर सिटीज, इससे पहले वर्ल्ड बुक कैपिटल्स कौन कौन थे? मैड्रिड था 2001 में, अलेक्जेंड्रिया इन 2002, न्यू दिल्ली इन 2003, एंटवर्प इन 2004, मॉन्ट्रियल इन 2005, ट्यूरिन इन 2006, बोगोटा इन 2007, Amsterdam in 2008, Beirut in 2009, Ljubljana in 2010, Buenos Aires in 2011, Yerevan in 2012, Bangkok 2013,
Port Harcourt in 2014, Incheon in 2015, Wroclaw in 2016, Conakry in 2017, Athens in 2018. तो ये सब कंट्रीज रिस्पेक्टिव ईयर्स में वर्ल्ड बुक कैपिटल्स अनाउंस हो चुकी हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30. नेम द इंडो अमेरिकन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूएस डिप्लोमैट टू पेरू. द आंसर इज ऑप्शन सी, Krishna R. Urs. He is Krishna R. Urs. US President Donald Trump has appointed Indian American Krishna R. Urs as the new US Ambassador to Peru. US सरकार ने भारतीय ओरिजिन के कृष्णा आर उर्स को पेरू का एम्बेसडर अनाउंस किया है. He is a career service American diplomat who has served at 7 US embassies as well in several senior leadership positions in Washington DC. और अभी ये क्या काम कर रहे हैं? ही इज सर्विंग एज चार्ज डी अफेयर्स ऑफ द यूएस एम्बेसी इन मैड्रिड, स्पेन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 6 मुस्लिम कंट्रीज फॉर विच यूएसए हैज इशूड न्यू वीजा गाइडलाइंस. इनमें से कौन सा वो 6 देशों में से नहीं है जिसके लिए नई वीजा गाइडेंस इशू की गई है बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इसका आंसर है ऑप्शन ए, इराक. तो जो 6 देश हैं जिनके लिए नई गाइडलाइंस इशू हुई हैं वो हैं सीरिया, सुडान, सोमालिया, लिबिया, ईरान एंड येमेन. अगर आप इन देशों से हैं और आपको यूएस वीजा चाहिए देन यू मस्ट प्रूव अ रिलेशनशिप विद अ पेरेंट, स्पाउस, चाइल्ड, एडल्ट सन और डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ और सिबलिंग ऑलरेडी इन द यूएस टू बी एलिजिबल. तो अगर आपको यूएस वीजा चाहिए और आप इन 6 देशों से हैं तो यूएस में रहने वाले किसी इंसान के साथ आपका ऐसा रिश्ता होना चाहिए, तभी आपको यूएस वीजा मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 32. इंडिया इज सेलिब्रेटिंग द सेंटिनरी ऑफ विच ऑफ दीज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन द ईयर 2017. द आंसर इज ऑप्शन सी, साबरमती आश्रम. 2017 में भारत साबरमती आश्रम के 100 साल की कंप्लीशन की सेलिब्रेशन कर रहा है. Sabarmati Ashram was the place where Gandhiji lived. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the centenary celebrations of Sabarmati Ashram. Sabarmati Ashram is located in Ahmedabad. Sabarmati Ashram is otherwise also called Gandhi Ashram, Harijan Ashram or Satyagrah Ashram, and it is located on the banks of river Sabarmati. साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम लोकेटेड है और इसे गांधी आश्रम, हरिजन आश्रम या फिर सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इवोकिंग अ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ डैश. इन 4 ऑप्शंस में से इस ब्लैंक को भरने के लिए बेस्ट सुटेबल आंसर है ऑप्शन बी, जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. The government has notified the rollout of goods and services tax from July 1st. 1 जुलाई 2017 से GST लागू हो जाएगा. GST, which will subsume a host of indirect levies like excise, service tax and VAT, will be one of the nation's biggest economic reform. GST implement होने के बाद excise, service tax, VAT ये सब खत्म हो जाएंगे. Goods and Services Tax is a comprehensive indirect tax which will be levied on manufacture, sale and consumption of goods and services in India. तो इन सारे levels पे एक ही tax implement होगा, that is the GST. This is the biggest tax reform in the country. And which was the first country to introduce GST system? France was the first country in the world to introduce GST system in the year 1954. 1954 में फ्रांस में जीएसटी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34. ISRO has successfully launched which satellite from French Guiana on June 29, 2017? The answer to this question is option C, GSAT-17. GSAT-17 is ISRO's 3rd satellite that is launched within a span of 3 months. पिछले 3 महीनों में ये ISRO की तीसरी सैटेलाइट है. इसे लॉन्च किया था एरियन 5 लॉन्च व्हीकल ने. इसका वजन है 3477 किलो. दिस इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट. इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाएगा और इसकी मिशन लाइफ है 15 साल. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35.
Name the Indian shooter who has bagged a gold medal in the women's 10-meter air pistol in the Junior World Rifle Pistol Championship. इसका आंसर है ऑप्शन बी, यशस्विनी सिंह देसवाल। ये है यशस्विनी सिंह देसवाल और ये है अनीश भनवाला। यशस्विनी सिंह देसवाल has bagged the gold medal in the women's 10-meter air pistol and Anish Bhanwala has got a gold medal in men's 25-meter standard pistol competition in the Junior World Rifle Pistol Championship held in Germany. Now let us see question number 36. Name the first turbaned Sikh woman judge of Supreme Court of Canada. सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा की पहली टर्बन्ड सिख वुमन जज का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, पलबिंदर कौर शेरगिल। ये है पलबिंदर कौर शेरगिल और ये है नित्या अय्यर। भारतीय ओरिजिन की सिख लॉयर पलबिंदर कौर शेरगिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया न्यू वेस्टमिंस्टर का जज अपॉइंट किया गया है और नित्या अय्यर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन वैंकूवर का जज अपॉइंट किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नेम द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सैटेलाइट टू हैव बीन लॉन्च्ड बाय नासा। द आंसर इज ऑप्शन ए, कलाम सैट। दिस इज कलाम सैट. This is the world's lightest satellite. Its weight is 64 grams only. It has been designed by 18-year-old boy Rifat Sharook from Tamil Nadu. भारत के 18 साल के उम्र के लड़के रिफात शरूक ने दुनिया की सबसे हल्की सैटेलाइट कलाम सैट, जो कि सिर्फ 64 ग्राम्स के वजन की है, उसे बनाया और नासा ने उसे लॉन्च किया। The tiny satellite has been named as KalamSat after the former President of India, APJ Abdul Kalam. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38. How many states in India have been declared open defecation free under the स्वच्छ भारत रूरल मिशन? स्वच्छ भारत रूरल मिशन के अंदर कितने स्टेट्स को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है? आंसर है 5 स्टेट्स को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। Under the Swachh Bharat Mission, Grameen, rural Uttarakhand, rural Haryana have been declared as the 4th and 5th open defecation free states of India. और इससे पहले के 3 स्टेट्स हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड केरला। तो टोटल अभी तक 5 स्टेट्स को ODF डिक्लेयर किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39. Name the chief of the newly established UN Counter Terrorism Center, UNCCT. The answer is option C, Vladimir Voronkov. Vladimir Voronkov एक रशियन है। The UN Secretary General Antonio Guterres has appointed Russian diplomat Vladimir Voronkov to head the newly established UN Counter-Terrorism Center. The newly established UNCCT has been mandated to oversee counter-terrorism efforts of UN-funded programs under the ambit of a variety of UN agencies. लाइक इंटरपोल, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन के अंदर जितनी भी एजेंसीज आती है जो कि वर्ल्ड लेवल पर टेररिज्म को काउंटर कर रही हैं, उन सब की वर्किंग को ये चेक करेंगे। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 40. नेम द प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवेज टू रिवैम्प प्रीमियम ट्रेन्स. इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 41. In which year was the first International Yoga Day celebrated? Answer is option A, 2015. 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया गया था। The President of India, Pranab Mukherjee, had inaugurated a mass yoga demonstration for the 3rd International Day of Yoga at the Rashtrapati Bhavan in the year 2017. 2017 में 3rd International Yoga Day मनाया गया। According to UN, योगा डे की थीम है योगा फॉर हेल्थ। 2017 के योगा डे की थीम है योगा फॉर हेल्थ। द आइडिया फॉर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे किसने दिया? ये आइडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एट द यूएन जनरल असेंबली इन 2014 सितंबर। 2014 के सितंबर के महीने में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पे नरेंद्र मोदी ने ये आइडिया दिया कि हमें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42. नेम ISRO's न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. इसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्टोसैट 2।
ISRO ने अपनी नई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है कार्टोसैट 2, जिसका वजन है 712 किलो, और इसके साथ में 30 नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई हैं यूजिंग अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 43, which building in India has acquired the image trademark under the Trademark Act? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ताजमहल पैलेस होटल, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। ये है ताजमहल पैलेस होटल मुंबई में। अब से ताजमहल पैलेस होटल की इमेज को, उसकी फोटोग्राफ को, खासकर उसके डोम और उसके बाहरी जो बिल्डिंग है उसकी इमेज को कोई भी यूज नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ताज होटल्स, पैलेसेस, रिजॉर्ट्स एंड सफारीज। इनकी इजाजत के बिना आप इस होटल की इमेज को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने इमेज ट्रेडमार्क ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 44, द नो इंडिया प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 45, नेम द इंडियन बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट 8000 रन्स इन ODI? आंसर इज ऑप्शन डी, विराट कोहली। Question number 46, name the winner of the Man Booker International Prize 2017. The answer is David Grossman. इजरायली ऑथर, ये इजराइल के हैं डेविड ग्रॉसमैन, जिन्होंने मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीता है फॉर हिज नॉवल अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार। डेविड ग्रॉसमैन इज द फर्स्ट इजरायली ऑथर टू विन दिस प्राइज। मैन बुकर प्राइज इंग्लिश लैंग्वेज के लिटरेरी अवार्ड की दुनिया में दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमन हु हैज बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज। द आंसर इज ऑप्शन ए, नीरू चड्डा। क्वेश्चन नंबर 48, नेम द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट ऑफ रोमानिया। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिहाई ट्यूडोस। क्वेश्चन नंबर 49, नेम द विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड टाइटल इन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भूमिका शर्मा। क्वेश्चन नंबर 50, नेम द इंडियन टू हैव वन द USIDC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आदि गोदरेज। गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज एंड Dow Chemical CEO Andrew Liveris won the Global Leadership Award of the United States India Business Council for their role in integrating India into the global supply chain. तो भारत के गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज और डो केमिकल्स के CEO एंड्रयू लिवरिस को ये अवार्ड दिया गया है बाय द USIBC, क्योंकि इन्होंने भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक अच्छा महत्वपूर्ण रोल दिलवाया है। With this session comes to an end. Thank you for watching this and do subscribe to our channel Success CDs Education.